So guys, am I audible to everyone? Okay, Vishal and Ayush. Okay, good. So guys, we are meeting after a long time, right? So I hope all of you are doing well. All of you are good because I think the third wave of COVID has started. Okay, at some places. So I hope all of you are taking care of yourself and your family also. All right. So are you good? Okay, nice. Okay. Okay, so can you please tell me which lesson we were studying in the last lecture? Okay, okay. So I hope Vishal is fine right now. Okay. So in rainy season, viral fever is a common thing. Okay. Okay. So can anybody tell me? Do you remember anything? What we studied in the last lecture? Okay, 5 year plans. Yes, we already completed 5 year plans. Okay. Just wait a minute. I will just share my screen till that. Just wait. Okay. So tell me if screen is visible or not. I'm presenting. Okay. So can you see the screen? Okay. Okay. Fine. So here is our textbook, right? So here we started our 5 year plans. We completed a 9 5 year plans, right? Fifth, seventh, okay, so eighth, ninth 5 year plan. After that, we studied nationalization of banks. What was the background behind it? What is the nationalization of bank actually? And we also studied in which rule, okay, in which who was the prime minister at that time. We studied that. Also, which were the banks that were nationalized, okay, in 1969. Okay, so these are the banks. After that, we studied about 20-point program. Who started that 20-point program? What was the major objective behind this 20-point programs? Which programs or objectives were in that? They are enlisted over here. We studied that. Then we started issues of workers. Okay, we started the issue of workers because at that time there were many people who were working in the textile mills, okay, in Mumbai, okay, and other uh, places. So basically Mumbai has a humid atmosphere, right? तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये जो मिलिंग का बिजनेस है, ओके, टेक्सटाइल मिलिंग, ये सिंपल हो जाता है. सो उस वक्त मुंबई में बहुत ज्यादा मिलिंग थी, ओके, मिल्स थे, टेक्सटाइल मिल. वहां पर क्या होता था,
कापड़ बनता था, कपड़ा, राइट. So we studied it that in 1980s, increasing unrest among the workers was due to why the workers were not happy with the companies, with the mills. What was the problem for them? We studied about that. We also studied that Mahatma Jyotirao Phule associated with Narayan Meghaji Lokhande's effort resulted in weekly Sunday holiday for the mill workers from 1st January 1882. मतलब जो मिल वर्कर थे, ये जो छुट्टी की प्रथा है ना, हमारे पास संडे को छुट्टी होती है, ये भी कब शुरू हुई थी? 1882 में. ओके, वो किसने शुरू की, किनके प्रयास से वो शुरू हो पाई? तो महात्मा ज्योतिराव फुले के एक एसोसिएट थे, नारायण मेघाजी लोखंडे. उन्होंने एफर्ट किया, उन्होंने अपना गवर्नमेंट को बताया कि ऐसा ऐसा चाहिए लोगों को. तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ डे लीव ऑन संडे. ओके, संडे हॉलिडे फॉर mill workers from 1st January 1882. So guys, I think we have seen up to now, right? Hello, am I audible? Yes. So can I take next topic now? Are you ready? Okay, Ayush, Vishal. Okay, guys, see here. In Diwali of 1890, I think this is also covered that in 1981, workers were expecting that we will get 20% bonus from the company. But what happened? There was one Mazdur Sangha, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ. ओके, तो मिल मजदूर संघ ने क्या किया? उन्होंने निगोशिएट किया किससे? कंपनी वालों से. और मजदूरों को बिना बताए उन्होंने कहा कि यस, कंपनी जो है वो 8 से 17% तक बोनस, परसेंट तक बोनस दे सकती. सो दे डिड नॉट considered worker. Okay, or they did not take any what we can say opinion from the workers that are you ready for this or not. Okay, so the cut in bonus proved to the cause of unrest. So because of that, what happened? Workers started to strike. Okay, unrest happened in the workers. Some workers went to Datta Samant. So Datta Samant is one of the leader. Okay, so some workers went to him and said to him that would you please lead our strike or our what we can say movement, okay, to increase our bonus. Okay, so Datta Samant agreed on it. They accepted the leadership of that, and workers of 65 mills come together, and they went on strike with Datta Samant. On 18th January 1982, 2.5 lakh workers, okay, almost 2.5 lakh workers went on strike. Girgaon mill stopped running because of because it seems, okay, making it seems like Mumbai's heart stopped throbbing. It means this Girgaon mill was one of the biggest mill, okay, or a major hub for the mills. So it was 24/7 working. Okay. So once it is stopped, then it seems like that total Mumbai, heart of the Mumbai has stopped. Okay. So the chief minister of Maharashtra at that time was Barrister A.R. Antule. Okay, so he set up a committee to solve this issue. Okay, because workers wanted to get their bonus as a 20% bonus. Later, Bapu Sahib Bhosle became chief minister of Maharashtra state. See here. B.R. Antule set up a committee to solve this issue of workers, but after that, I think he resigned, and then Baba Sahib Bhosle became the chief minister of Maharashtra state. He insisted that as per law, he would talk only to Rashtriya Mill Mazdur Sangha. Okay, तो जो वर्कर्स दत्ता सामंत जो थे, ओके, लीडर, वो जो डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए, हमें बोनस चाहिए, लेकिन जो बाबा साहेब भोसले जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि
मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि एक लॉ के हिसाब से, कायदे के हिसाब से मैं सिर्फ मिल मजदूर संघ से ही, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से ही बात कर सकता हूँ, उनसे ही निगोशिएट कर सकता हूँ. सो द डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड दैट लॉ बी रिवोक्ड. इट मीन्स ये लॉ बदलना जाना चाहिए, ये लॉ उखड़ कर फेंक देना चाहिए. If you cannot talk to the workers, if you are just talking with Mil Mazdoor Sangha, then how it is fine? It is not fair. Okay, that law should be changed. Okay, so in the beginning, the striking workers received help from their native villages. Okay, so people were from the native villages. So these workers get help from native villages. It was also not very difficult for them to help each other. Okay, they also help to each other. They set up departmental committees and distributed food grains, assisted in the form of funds, etc. It means now see, workers are striking. They are not one work. Okay, they are not doing any work. So these native people from the villages, they help them by giving grains, अन्न धान्य उनको सप्लाई किया, जिसकी वजह से लोग जो वर्कर है वो वहां पर स्ट्राइक पर बैठ सके. ओके, सो ऑल्सो वो जो वर्कर थे उन्होंने एक डिपार्टमेंटल कमेटी सेटअप की और उन्होंने फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किए. असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फंड, कुछ लोगों ने उनको फंड भी दिया, मतलब पैसे भी दिए. जिस प्रकार आज अगर कहीं पर फ्लड आ जाता है, पूर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, लोगों को मदद जो भेजते, उसी प्रकार जब ये वर्कर स्ट्राइक पे गए तो बाकी के लोगों ने उनको मदद भेजी. ओके, सो गाइस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो? Okay, so are you getting the points, my discussion, what I am trying to say you? Yeah, okay, Vaishnavi. Okay, who are there? Other people, Vaishnavi, Vedant, Ayush and Vinit. Okay, Vedant, I think Vedant is not active over here. Okay, 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 good, fine. Okay, if you find any problem here, please write down in the chat box. Okay, otherwise I will not able to understand what you are not getting. Okay, so let's get here. So as the strike dragged on, मतलब जैसे जैसे ये स्ट्राइक आगे बढ़ रही थी, efforts were made to split the striking worker ranks. ओके, तो क्या हुआ, ये जो स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर, उनमें स्प्लिट करने का लोगों ने प्रयास किया. मतलब अगर वो जो आंदोलन कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, उनको फूट डालनी थी, उसमें उसमें कुछ गट निकालने थे. ओके, even as the strike completed 6 months, the central government completely ignored it. It means what? The workers were striking for 6 months. Still, central government did not talk with them, did not resolve their issue. They ignored properly. Okay, totally ignored their strike. It means it is like आप स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं किसी डिमांड के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने आपकी एक नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी, आपको देखा तक नहीं, आपसे कुछ बातचीत तक नहीं की. ओके, it means central government completely ignored it. The workers started a jail भरो agitation. तो वर्कर्स ने क्या किया, जेल में जाना शुरू किया, मतलब हमें अरेस्ट करो सबको, ऐसा उन्होंने जो जेल भरो आंदोलन बोलते हैं उसे शुरू किया. So in September 1982, 1.5 lakh workers took a march on Legislative Assembly of Maharashtra State. Okay, so what happened? लगभग 1.5 लाख जो वर्कर थे, 1.5. ओके, तो उन्होंने सितंबर मंथ में क्या किया, 1982 में उन्होंने एक मार्च निकाला, एक यात्रा निकाली. कहां पर? हमारी जो विधान भवन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर उन्होंने मार्च निकाला. ऑल्सो इट डिडंट हेल्प एट ऑल, बट इससे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा. दे डिड टोटली इग्नोर्ड अगेन. दिस स्ट्राइक कंप्लीटेड अ ईयर. अभी स्ट्राइक करते करते 1 साल हो गया, फिर भी गवर्नमेंट इज नॉट giving attention, not listening to these workers. Okay, in this period about 1.5 lakh workers become unemployed. तो इसमें क्या हुआ,
लगभग 1.5 लाख वर्कर जो है उनको कंपनियों ने निकाल दिया. ओके, दे बिकम अनएम्प्लॉयड. ऑलराइट, मतलब देखिए एक करीब 1 साल तक आंदोलन चला, फिर भी गवर्नमेंट डिड नॉट हेल्प देम, गवर्नमेंट डिड नॉट टॉक विद देम और रिजॉल्व देयर इशू. As polyester had come into greater demand than cotton cloth, the sale of mill cloth had already got affected. Now see guys, polyester is a plastic. Okay, it is plastic, and we know we are using more plastic than the kapad or textiles, right? So कॉटन की जगह पे ये जो पॉलिस्टर का यार्न जो है, पॉलिस्टर जो है, प्लास्टिक जो है, नायलॉन जो है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी. ओके, जो नायलॉन जो होता है पॉलिस्टर यार, तो इसकी डिमांड बढ़ने लगी. और उसकी वजह से ये जो मिल थे, उनका जो सेल था, उनका जो रेवेन्यू था, वो बहुत कम हो गया, क्योंकि उसकी डिमांड भी नहीं रही. क्योंकि कॉटन को डिमांड जो थी वो कम हो गई. नायलॉन का जो वहां पर शोध लगा, उसका जो रिसर्च हुआ, ओके, इनोवेशन हुआ, उसकी वजह से द मिल मूव्ड फ्रॉम मुंबई टू सूरत इन गुजरात. तो क्या हुआ, अगर किसी कंपनी मालिक को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वर्कर आंदोलन कर रहे हैं 1 साल से, तो वो उन लोगों ने क्या किया, मुंबई में जो कंपनियां थी वो टोटली बंद कर दी, और वो कंपनी का सारा सामान उठा के वो कहाँ पर गए, सूरत में, गुजरात में, दूसरे स्टेट में गए. ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 13 टेक्सटाइल मिल्स. ओके, तो क्या हुआ, इसी वक्त 1 साल हो गया, 1.5 लाख लोगों ने रोजगार खोया. फिर मिल्स का जो कॉटन था, कॉटन की डिमांड कम हो गई और मिल्स घाटे में आना शुरू हो गया. कुछ मिल्स ने क्या किया, अपना जो सारा सामान उठाकर वो सूरत चले गए, अहमदाबाद, गुजरात में चले गए. ओके, वो सूरत में. तो उसके बाद क्या हुआ, जो 65 कंपनी मिल्स थी, उसमें से 13 मिल्स जो है टेक्सटाइल की, उसका उस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया. ओके, उस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया, क्योंकि जो स्ट्राइक चल रही थी इसी की वजह से. अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू. इट मीन्स बीच में कुछ लोग भी गवर्नमेंट में भेजे कि आप उनसे बात कीजिए, निगोशिएट कीजिए, लेकिन उससे भी काम नहीं चला, और ये जो इशू था वो इशू ऐसा ही रह गया. ओके, इट मीन्स वर्कर का जो इशू रहा था वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया. ओके, इश्यूज ऑफ वर्कर्स इन दिस पीरियड. Okay, so you got it. How the problems of mill worker was going on, what different things they did, they tried, but still they were unable to resolve the issue, right? Okay, fine. Here is something given that the working class has contributed culturally as well through folk theatre, folk art, and literature. Anna Bhau Sate, Shahir Amar Sheikh, Shahir Sable were popular for their programs aimed at public education. Poets like Narayan Surve, Namdev Dasa, etc. portrayed the real life of workers through their poems. Now see, basically to support these workers, some poems, some we can say public education की तरफ से जो ध्यान देने वाले लोग थे, ओके, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. उन्होंने लोगों के मन में अवेयरनेस क्रिएट किया, कि समाज में अवेयरनेस क्रिएट किया कि हमें ये सब लोगों को देखना चाहिए, इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, so likewise this. Okay, so this problem now is still not resolved. Okay, now we will start the next topic, that is new economic policy. Okay guys, so guys, do you know why the year 1991 is important from the Indian perspective? Anybody knows anything about it? Why 1991, the year 1991 is very important from Indian point of view? Okay, we shall don't know. What about other? From Indian government or India's economy, why it was important? Do you know anything? Apart from Vishal, anybody else? I think we have covered this in last in some lecture, I think.
ओके, विनीत को पता है शायद. सो विनीत, डू यू नो एनीथिंग right here? Yes, in lesson second I have explained you about this, I think. In lesson second we studied that in 1991 Soviet Union collapsed, right? It was important from the world perspective, but from Indian perspective, what changes happened in 1991? Okay, so I will tell you. Okay, so guys, you all of you know that what happens जिस प्रकार हम कब कमाते हैं. ओके, तो हम कुछ सेव करते हैं उसमें से. ओके, पैसों की बचत करते हैं ताकि हम हमारी जरूरतों को वो क्या कर सकेंगे, पूरा कर सकेंगे. कभी सिचुएशन खराब आ जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसी चीज के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है इंडिया का, वो भी क्या करता है, बचत करता है, सेविंग करता है. उसकी वजह से क्या होता है, जब भी हमें कुछ चीजों का इंपोर्ट करना पड़ता है. आप सबको पता है कि हमारे सब कुछ जो चीजें हैं हमारे देश में नहीं मिलती, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. चाइना से करता है, हम वो चीजें मंगाते हैं. हम पेट्रोलियम जो ऑयल है, ओके, वो यूएई से मंगाते हैं. ओके, ईरान से मंगाते हैं, सऊदी अरेबिया से भी लाते हैं. ओके, ऑल्सो वी नो दो दैट edible oil, right? Edible oil is not produced in India. We are not self sufficient in that. So from the Indonesia we import the palm oil, right? So for that purpose, what is important? We must have money, right? Our country must have money, foreign money, because every transaction that is being taken place at global level, it is done in the US dollars, right? It is taking place in the dollars. तो 1991 में सिचुएशन ऐसी आ गई थी फ्रेंड्स कि हमारा देश के पास बिल्कुल पैसा खत्म हो गया था. तो मनी कितना था देश के पास, सिर्फ 10 से 15 दिन तक हम चीजें मंगा सकते हैं, सिर्फ इतना ही पैसा हमारे पास उस वक्त था. तो बेसिकली सिचुएशन फॉर इंडिया वाज वेरी बैड एट दैट टाइम. ओके, तो टू सॉल्व दिस इशू वी नीड अ लोन फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, IMF, इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ओके, तो लेकिन उन्होंने हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हमें बताए और कुछ कंडीशंस हमारे बताए कि आपको इकोनॉमी ऐसा ऐसा चेंज करना है, वैसा ऐसा चेंज करना है, उसके बाद ही हम आपको लोन देंगे. और जब तक हमें वो लोन मिलता तो हम उस लोन का इस्तेमाल हमारे इंपोर्ट्स के लिए कर सके. ओके, so do you understand what was the situation of economic situation of India in 1991? हेलो. ओके, ओके, तो क्या हुआ 1991 में, हमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने किए तो उससे कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ओके, तो हम देखेंगे अभी. द ईयर 1991 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. आज जो हम हमारा भारत देखते हैं कि हम वर्ल्ड में 5वें स्थान पर है जीडीपी के मामले में. ओके, हमारा देश का जो उत्पादन है उसके मामले में हम 6 नंबर पर है. ओके, so this is the modern India. But in 1991, our situation, I already told you that it was very very bad. Okay, so the year 1991 is very important in the history of modern India. Okay, आधुनिक भारत के इतिहास में 1991 ये जो साल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है. आफ्टर 10th जनरल इलेक्शंस, मतलब 1991 में क्या हुआ था, इलेक्शंस हुए थे 10वें, वो म्हणजे 10 बार इलेक्शन तब तक देश में हो चुके थे, 10वें इलेक्शन. सो इन दैट जनरल इलेक्शंस, मतलब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन. ओके, PV नरसिम्हा राव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मतलब हमारे 10वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने, 10वें नहीं लेकिन इन 10th जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शंस, PV नरसिम्हा राव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड with Dr. Manmohan Singh as finance minister, he adopted the new economic policy of linking India's economy with global economy. ओके, इसका मतलब क्या होता है, 1991 में क्या हुआ, जो इलेक्शन हो गए उसमें प्राइम मिनिस्टर बने PV नरसिम्हा राव. ओके,
पीवी नरसिम्हा राव ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर किसको चूज किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूज किया और उनको साथ में लेकर उन्होंने हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसको बदल दिया और उस पॉलिसी को हमने ओपन कर दिया और हमने उसे ग्लोब से मतलब वर्ल्ड से दूसरे देशों से लिंक कर दिया. ओके, व्हाट इज दिस? We adopted new economic policy of linking India's economy with global economy. Linking India's economy means what? Privatization, globalization, and liberalization. Basically, any country can come in India, they can invest here, they can establish their companies over here, and they can give so that employment will generated in India. Indian government will gain revenue, taxes from this country, from these people. Okay, these companies. So before 1991, this was not the situation. Before 1991, Indian government was not allowing any businesses for foreign companies in India. Everything was run by Indian government, and we know government companies kaise hote. Okay, so for these fundamental changes were brought, okay, about in Indian economy. तो हमें जो ये जो इकोनॉमी है हमने जो लिंक की वर्ल्ड से हमारे देश की इकोनॉमी, ओके, तो उसको करने के लिए हमने हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस किए, फंडामेंटल चेंजेस किए. ओके, वी ब्रॉट आउट चेंजेस. इंडियन इकोनॉमी वाज ब्रॉट इन ट्यून विथ ग्लोबल मेनस्ट्रीम. सो उससे पहले क्या हो रहा था कि भारत के बाहर 1991 से पहले भारत के बाहर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था. वहाँ की जो इवोल्यूशन है लोगों का वो ज्यादा हो रहा था, मॉडर्न हो रहे थे लोग. लेकिन उसी वक्त उसी टाइम पे इंडिया में कुछ नहीं हो रहा था. ओके, इंडियन पीपल वी आर स्टिल पुअर. ओके, जब ये पॉलिसी हमने लागू की तो हमने क्या किया, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल मेन स्ट्रीम में आने लगी. मतलब दुनिया में जो चल रहा है वो हमारे देश में भी चलने लगा, होने लगा. नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब हम दुनिया के बराबर चलने लगे, यूरोप अमेरिका के बराबर हम थोड़ा 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 हमारा कंट्री हमारे पीपल चलने लगे, हमारा देश चलने लगा. ओके, so basically it is nothing but Indian economy was brought in tune में आ गए हम with the global mainstream. दुनिया के मुख्य प्रवाह में हम आ गए. During this period, Indian economy was in crisis situation. Okay, तो ये अब तक का जो पीरियड था 1991 का, तो एक बड़ा क्राइसिस आ गया था, बड़ा संकट आ गया था इंडियन इकोनॉमी में. ओके, बिफोर द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टूक चार्ज, चंद्रशेखर वाज प्राइम मिनिस्टर. ओके, व्हाट डज इट मीन्स? जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में आ गए, प्राइम मिनिस्टर बने, उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चंद्रशेखर थे. चंद्रशेखर वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. लेकिन चंद्रशेखर का जो टाइम था उसमें क्या हो गया, हमारा देश का जो इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है रुपीस का, पैसे का, वो लगभग 17% हो गया. ओके, इन्फ्लेशन मतलब 17% हो गया. इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, किसी एक चीज की जितनी कीमत है, हमारे देश में जितने सारे प्रोडक्शन हो रहा है, जो कुछ गाड़ियां बन रही है, मशीनरी बन रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, ओके, उसकी जो कीमत है एक्चुअली, अगर उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट में छाप कर बाद लोगों को बांट दिया तो क्या होगा? लोगों को देश में फॉर एग्जांपल जो गुड्स है, जो मशीनरी है, जो कार्स है, जो इंडस्ट्रीज है, उसकी वैल्यू तो 100 रुपए है फॉर एग्जांपल. बट गवर्नमेंट में लोगों के पास पैसा 170 रुपए है टोटल. तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया, 17% बढ़ गया, रेट्स बहुत बढ़ गए, प्राइसेस बहुत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई. ओके, सो ये कब था? नरसिम्हा राव से पहले. सो इकोनॉमिक ग्रोथ हैड गॉन डाउन बाय 1.1%. और हमारा जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो गवर्नमेंट का पैकेज है, वी कैन से रेवेन्यू है, महसूल जो है, वो बहुत कम बढ़ रहा था. मतलब हर साल सिर्फ 1.1% से बढ़ रहा था उसकी 1991 तक. ऑलराइट, इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली इनफ टू लास्ट फॉर इंपोर्ट्स फॉर अ वीक. मैंने तो आपको 15 दिन बताया, यहाँ तो 7 दिन. एक वीक के लिए हमें पैसे पुरेंगे. फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर फॉरेन करेंसी है. हम जब भी कोई थिंग इंपोर्ट करते हैं तो हम डॉलर में उनको पेमेंट करते हैं, वो रुपीज में लेते नहीं.
तो हमारे पास डॉलर ही बहुत कम बचे थे हमारे रिजर्व में। ओके, सो उसकी वजह से हम सिर्फ अपने देश को एक हफ्ते तक चला सकते थे। सो ये सिचुएशन थी 1991 में। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो 17% था, ग्रोथ रेट था 1.1% था, बहुत कम था। इट हैड बिकम डिफिकल्ट टू पे बैक इट्स लोन। सो हमारे देश में बाहर से लोन लिए थे, तो इस लोन का पे करना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि देश का चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोन कब पे करेंगे। ओके, सो इट वाज डिफिकल्ट टू पे बैक इट्स लोन एंड इवन गिव द इंटरेस्ट ऑन इट। लोन पे बैक करने तो दूर रहा, उसका जो ब्याज है वही हम दे नहीं रहते। In May 1991, the government had tried to control the situation by selling some of its gold reserve and by mortgaging some. तो आप सबको पता है कि हमारे गवर्नमेंट के पास सोना पड़ा है, कुछ टन सोना पड़ा है, उन्होंने रख लिया है, वो रिजर्व करके रखा है। अगर कभी बहुत खराब सिचुएशन आए तो हम उस सोने का इस्तेमाल कर सके इसलिए। तो उस वक्त क्या किया, सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था, तो देश को चलाएंगे कैसे, तो उन्होंने क्या किया, वो जो सोना था हमारे पास, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक के पास, उन्होंने वो शायद किसी एक कंट्री को, वर्ल्ड बैंक को शायद, वो गिरवी रखा, वहां पर मॉर्गेज किया, गिरवी रखा। ओके, यार उसका जो सम पार्ट था वो बेच भी दिया, तो उसकी वजह से हमारे देश के पास कुछ पैसे आए। ओके, सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया इन 1991 बिफोर द चंद्रशेखर गवर्नमेंट, the PV nurse PV Singh, okay, VP Singh, okay. So before Chandrasekhar government, the VP Singh government had incurred a liability of over 10,000 crore rupees on economy by waiving of the loans of all farmers. अभी देखिए हमने क्या देखा, नरसिम्हा राव से पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था, चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर से पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था, वीपी सिंह। ओके, तो वीपी सिंह ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर थे वो, कुछ कुछ दिन के लिए थे, शायद कुछ महीने के लिए, उन्होंने सारे जो फार्मर से उनका लोन माफ कर दिया। ओके, जो क्रॉप लोन है वो माफ कर दिया, लेकिन इसकी वजह से गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा बर्डन आ गया, 10,000 करोड़ रुपए टोटल गवर्नमेंट पे लोन आ गया, क्योंकि ये पैसे फार्मर के माफ कर दिए, मतलब वो माफ नहीं हो जाते, उनके पैसे गवर्नमेंट पे करता है बैंक को। ओके, पैसे लोन माफ करते इसका मतलब ये नहीं, ओके, कि पैसे नहीं भरने, तो वो पैसे गए शेतकरी जो ज्याला आपण म्हणतो कि किसान जो है, वो किसान नहीं पे करते, वो गवर्नमेंट पे करता है। उसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट पे और 10,000 करोड़ का लोन हो गया। ओके, सो द proportion of internal loans of central and state governments together to the gross domestic product was 55%। मतलब क्या हो गया, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक होता है, ओके, हर स्टेट का गवर्नमेंट, तो उन सब ने लोन ले रखा था, और वो लोन इतना बढ़ गया था कि अगर हमारा जो इनकम है देश का और स्टेट का, वो अगर 100 रुपए है हर साल, तो हमारे देश पे 55% कि 55 रुपए तो लोन ही था। ओके, मतलब 100 रुपए हम कमा रहे हैं, लेकिन हमको लोगों को 55 रुपए देना है, तो इतना लोन हो गया। In 1980 and 81, foreign loan was 2350, okay, 2350 crore dollars. Oh, so this was very big, okay, but it increased to 8380 crore dollars in 1991। मतलब 10 साल में ये लगभग 5,000 करोड़ डॉलर बढ़ गया। ये था हमारा फॉरेन लोन। इंटरनल लोन तो था ही, ओके, जो इंटरनल लोन है अंतर्गत, वो तो था ही। उसके बाद फॉरेन से भी हमने लोन रखा था, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए 10। एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली 100 करोड़ डॉलर्स। ओके वेदांत, एक्चुअली, हेलो, एम ऑडिबल? Okay guys, basically guys, you know what, our government till 1991, मतलब जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद फिर कौन आया प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, ये सब प्राइम मिनिस्टर हो गए।
राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हो गए, वीपी सिंह हो गए, ओके, चंद्रशेखर हो गए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने देश का इनकम बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए वो सफल नहीं हो पाए। ओके, उन्होंने जो प्रयास किए वो सफल नहीं हो पाए, और कहीं ना कहीं उनके प्रयासों में भी कमी थी। ओके, मतलब हमने किस जगह पे पैसे खर्च करना चाहिए, वो लो उस सरकार जो थी तब तक की कांग्रेस सरकारें में होती और अदर सरकारें होगी, ओके, उन्होंने प्रॉपर वहां पर वी कैन से अटेंशन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ लोगों में पैसे बांट दिए। लेकिन लोगों में अगर सिर्फ पैसे बांट दिए तो वो खर्च हो जाते, उससे इनकम नहीं बढ़ता। ओके, तो ये थी सिचुएशन उस वक्त, वेदांत, यू अंडरस्टैंड? ओके, अगर इनकम के सोर्स ही हमारे देश में बढ़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली, कि हमारे आगे चल के पैसे आगे आएंगे कहाँ से? अगर लोगों को, गवर्नमेंट को पैसे आते कैसे, किसी को पता है? किसी को पता है गवर्नमेंट को पैसे कैसे मिलते हैं? यस, टैक्स कौन कौन सा होता है पता है आपको? टैक्स होता है इनकम टैक्स एक। इनकम टैक्स मतलब लोग जो काम करते कंपनी में, तो जो कमाते उस पे उनको टैक्स देना पड़ता है। ओके, और दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब किसी भी कंपनी में कुछ भी प्रोडक्ट अगर बना हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आप जब कुछ खरीदी करते हैं, जब भी जो कुछ खरीदी करते हैं, तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। जीएसटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट? यस। तो अगर जीएसटी कैसा आता है, बताइए। जीएसटी ऐसे आएगा, अगर बहुत ज्यादा कंपनीज देश में बढ़ेगी, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज देश में बढ़ेगी, तो होगा। ओके, फिर इनकम टैक्स कैसे आएगा? अगर उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग काम करेंगे तो इनकम टैक्स बढ़ेगा। लेकिन हमें पता है कि 1991 तक हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनियों को बढ़ने नहीं दिया। अगर किसी को बिजनेस करना हो तो उनको बहुत ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती थी, लैंड नहीं मिलती थी, कुछ नहीं। बाहर से भी कंपनियां जो थी मल्टीनेशनल, वो हमारे देश में आ नहीं सकती थी। अगर कंपनियां नहीं आएगी तो लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा, लोग कमाएंगे क्या, इनकम टैक्स क्या भरेंगे? और लोगों के पास पैसा नहीं तो लोग खरीदी क्या करेंगे? अगर कुछ परचेस ही नहीं करेंगे तो उस पर जीएसटी कैसे मिलेगा, ओके, गवर्नमेंट को? तो ये एक साइकिल थी, ये 1991 तक चलती रही। ओके, तो ये एक्चुअली एक कारण था कि we cannot improve our income or increase our income. So is it clear to everyone? Is it interesting to know all these things? Actually, it is extra information I am giving to you. Okay, it is taking our time also, guys. Okay, so we will move to next. तो हमने देखा कि इंडिया की क्या सिचुएशन थी। तो इंडिया पे फॉरेन लोन था 8,380 करोड़ डॉलर का। लेकिन हमारे पास, हमारे रिजर्व में पैसे कितने थे? सिर्फ 100 करोड़ डॉलर्स। ओके, this also had the background of increased oil prices due to the invasion of Kuwait by the Iraq. अभी देखिए, हमारे देश में हमें जितना पेट्रोल डीजल ऑयल लगता है, सब कुछ क्रूड ऑयल, वो हम 85% बाहर से मंगाते हैं। ओके, वो जो आखती देश है, यूरोपिया, व्हाट वी कैन से गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, वहां से मंगाते हैं। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, उन देशों में बड़ा बहुत ज्यादा युद्ध चालू हुआ। ओके, युद्ध चालू हो तो क्या होगा, ऑयल का जो प्रोडक्शन है वहां पर कम हो गया। अगर वहां पर ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, ऑयल की कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि मार्केट में ऑयल ही बहुत कम आ रहा है। और हम लगभग 85%, हमने 100% लगता है तो उसमें से 85% हम बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि हमारे देश में नहीं है। तो ये भी एक कारण था कि भारत को बहुत ज्यादा फॉरेन जो करेंसी है वो देनी पड़ रही थी। मतलब अगर $1 में क्रूड ऑयल मिलता था तो वो $10 हो गया। ओके, तो इसकी वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो घट गया। ओके, ये भी एक कारण था उस वक्त।
So it become difficult for India to raise a loan. So because of this what happened, इंडिया को लोन लेना भी मुश्किल हो गया बाहर से. Even the non-resident Indians started withdrawing their deposits in foreign currency from India. So guys, आप सबको पता है कि हमारे देश से बहुत से लोग दूसरे देश में जाकर कमाते हैं. अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, चाइना में, ईस्ट एशियन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, दुबई में जाते हैं. ओके, वहां वो कमाते हैं डॉलर में और वो पैसा इंडिया में भेजते हैं सेव करके. लेकिन उन लोगों को भी अभी हमारे देश पे भरोसा नहीं रहा. उनको भरोसा ये नहीं रहा, अगर हम गवर्नमेंट को ये पैसे सेव कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट डूब गई, देश डूब गया, तो हमारे पैसे भी डूब जाएंगे. तो उन्होंने उनके पैसे निकलने शुरू कर दिए. गवर्नमेंट में पास जो रखे थे वो उन्होंने निकालने शुरू किए. और इसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि इंडिया की कंडीशन कितनी बुरी थी उस वक्त इकोनॉमी की. ओके, so how bad the India's economic condition was at that time. India was in a economic crisis, we can say. Okay, clear guys? हेलो. ओके, तो उसमें रेमेडीज मतलब उपाय. ओके, उस पर हमने क्या सोल्यूशन निकाले, उसके क्या सोल्यूशन हमने रिजोल्व कैसे किया वो प्रॉब्लम. धीरे धीरे वो हम अभी देखेंगे. तो रेमेडीज क्या हुए देखिए. सो पीवी नरसिम्हा राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, हमें पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह एक एक्सपर्ट थे इन फाइनेंस सेक्टर. ओके, अर्थ तज्ञ थे वो एक. ओके, ही वाज अ इकोनॉमिस्ट. तो जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ गई, वो प्राइम मिनिस्टर बने 1991. उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा कि तो यू प्लीज बिकम अ प्राइम मिनिस्टर. सो ही बिकम प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ही बिकम फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर. So Manmohan Singh became finance minister at that time. Okay, because Manmohan Singh was good at economics. Okay, he was an expert. So if we make the expert as a finance minister, then he can take the India out of this situation. Okay, to find the way out of this situation, Dr. Singh undertook many corrective measures. तो जो मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बहुत से करेक्टिव मेजर्स लिए. द सिचुएशन बिगेन टू चेंज. और उनके सॉल्यूशन से धीरे धीरे सिचुएशन सुधरना, इंप्रूव होना शुरू हो गई. ओके, ही रिमूव्ड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अभी देखिए उन्होंने क्या किया. फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर की कंपनियां जो इंडिया में आकर अपना कंपनियां बसाना चाहती थी, इन्वेस्ट करना चाहती थी, बिजनेस करना चाहती थी, उनकी रेस्ट्रिक्शन जो थी, उन पर हमने पाबंदी बना रखी थी, वो खत्म कर दी. और अब कोई भी आकर हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकता था. ऑल्सो ही रेस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 यूनिवर्सिटीज. मतलब क्या, उन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था कि अगर किसी भी प्रकार की आपको कंपनी एस्टेब्लिश करनी हो, बिजनेस डालना हो, तो आपको उसका लाइसेंस निकालना पड़ता था. ओके, हर चीज का. तो वो देश ने खत्म, और लाइसेंस निकालना कितना मुश्किल है आपको पता है. तो वो मनमोहन सिंह सरकार ने खत्म कर दिया. और सिर्फ गिने चुने जो 18 टाइप के बिजनेस थे, कुछ बिजनेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओके, उनके लिए गवर्नमेंट की मंजूरी बहुत जरूरी है, उनको ही सिर्फ लाइसेंस रखे. 18 इंडस्ट्रीज कोई लाइसेंस देना जरूरी समझा. इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग लॉसेस इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ही ओपनड अप पब्लिक सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज. अभी देखिए, मैंने आपको पता है कि सब कुछ गवर्नमेंट कंपनी बनाती थी देश के लिए, उसके कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. अभी आपको पता है, अगर किसी गवर्नमेंट का काम होता है तो गवर्नमेंट के लोग काम नहीं करते बहुत ज्यादा, इसलिए वो कंपनी जो है वो घाटे में चलती. जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो कैसे प्रॉफिट में चलती है. लेकिन हमें पता है अगर गवर्नमेंट का कुछ होगा तो हम ध्यान नहीं देते ज्यादा, कुछ एम्प्लॉय काम नहीं करते बहुत ज्यादा. ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये कंपनी अगर लॉस बना रही है, इसमें से हमें पैसे नहीं भी आ रहे हैं, हम सिर्फ इसको रन कर रहे हैं लॉस में, तो हम क्या करेंगे, ये कंपनी को धीरे धीरे करके बेच देंगे. किसको? प्राइवेट इंडस्ट्रीज को. मतलब क्या, अगर एक कंपनी है वो किसी सरकार के मालिक की है, तो पहले 30% जो शेयर है कंपनी के, जो हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप, वो किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देंगे. और धीरे धीरे करके जो गवर्नमेंट है वो पूरी कंपनी उनको बेच देगा. ताकि उससे क्या होगा,
कि गवर्नमेंट पे जो बर्डन है इन कंपनी का लॉस निकल कर लाना, ओके, कंपनी तो लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है, ओके, उसको रखने में क्या फायदा। तो उसमें ये भी चीज करी कि ही ओपनड अप पब्लिक सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी अब गवर्नमेंट की जो कंपनीज है वो ले सकती है और गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर जो होता है, ओके, उसको उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेयर मार्केट अंडर कंट्रोल, he established the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, in 1992. ओके, तो क्या हुआ 1992 में, क्या होता है, आपने वेब सीरीज देखी क्या 1992? हैव यू सीन द वेब सीरीज 1992, स्कैम 1992? ओके, आयुष ने देखी, किसी और ने? विशाल ने नहीं देखी? एनीबडी एल्स? वेदांत ने नहीं देखी? ओके, आयुष यू हैव सीन? विनीत? वैष्णवी? उसकी रिंगटोन बहुत फेमस है ना, वो स्कैम की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बीजीएम बहुत फेमस है वो। ओके, तो ये जो स्कैम हुआ था उसी वजह से ये जो सेबी है वो बनाया था गवर्नमेंट ने। ओके, ये जो शेयर मार्केट ने हर्षद मेहता की तरफ से जो घोटाला शुरू हो गया था, तो ये लोगों के ध्यान में आ गया, गवर्नमेंट के ध्यान में आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, आगे कोई ऐसा ना कर सके इसके लिए 1992 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, मतलब SEBI मीन सेबी। ओके, तो ये वेब सीरीज जो है वो उस घोटाले पे आधारित है। ओके, स्कैम 1992। सो BSE मतलब, ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज कंप्यूटराइज्ड। ओके, उसको कंप्यूटराइज किया गया, जो शेयर मार्केट होता है उसको क्या किया, कंप्यूटराइज किया गया। ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव द स्पेक्टर ऑफ रिसेशन, मतलब जो रिसेशन आया था, तो रिसेशन मतलब जो मंदी आ गई थी अर्थव्यवस्था में, उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रायोरिटी दे दी। ओके, तो ये सारी चीजें थी मनमोहन सिंह ने की 1991 में, मतलब उन्होंने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट लोगों को बिजनेस के लिए परमिशन दी, देखे इन्वेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन दी। ओके, तो हमारी जो सिचुएशन थी वो सुधारने के लिए स्टेप्स लिए, ये सब चीजें की। ओके, so do you understand till now about this? Okay, any doubt, anybody? Okay, so next is foreign investment in India grew during first tenure of Dr. मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। अभी देखिए पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उन्होंने क्या किया, फिर रिफॉर्म्स किए, रेमेडीज लाई कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम परमिशन देंगे। तो उनके पहले टेन्योर में क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ गया, मतलब लोगों को, बाहर के लोगों को पता चला, फॉरेन पीपल को, कि इंडिया में हम जाकर कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। सो इंडिया कुड रिकवर द गोल्ड मॉर्गेज विथ बैंक ऑफ इंग्लैंड। हाँ, तो हमने जो बताया कि हमने हमारा जो लोन था वो गिरवी रखा था, उनको हमने तारण ठेवलं होतं, त्याला गहाण ठेवलं होतं, मराठीमध्ये म्हटलं जातं। ओके, वो कहाँ पर रखा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में हम रखा था। जिस प्रकार हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसी बैंक ऑफ इंग्लैंड है इंग्लैंड में। तो हमने क्या किया, वो जो लोन था हमारा, गोल्ड था, उसको भी हमने छुड़ा लिया, क्योंकि हमारे पास पैसे आने शुरू हो गए, हमारे देश के पास पैसे आने शुरू हो गए रिफॉर्म के बाद, धीरे धीरे। ओके, द गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज मिडिल क्लास। तो गवर्नमेंट को क्या हुआ, कैपिटलिस्ट क्लास मतलब जिनके पास पैसा था देश में, उन्होंने देश को सपोर्ट करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज शुरू की, तो रोजगार शुरू किया गवर्नमेंट को। मिडिल क्लास ने क्या किया,
उनको जो पैसे आते थे तो इनकम से इनकम टैक्स देना शुरू किया तो गवर्नमेंट को बड़ी राहत मिले. As the government opened up telecom sector, mobile phone services started all over country. ओके, पहले क्या था इंडिया में? ऑल इंडिया रेडियो चल रहा था, सब कुछ बीएसएनएल था, गवर्नमेंट के हाथ में था. ओके, तो उसने वो टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेट लोगों के लिए भी शुरू कर दिया. मतलब अभी प्राइवेट लोग आएंगे तो क्या करेंगे, वो भी मोबाइल सेवा करना शुरू करेंगे, देना शुरू करेंगे. तो इसकी वजह से हमारे देश में मोबाइल फोन सर्विसेज स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री. Dr. Manmohan Singh signed the agreement with World Trade Organization and launched the policy of privatization, liberalization and globalization. याला एलपीजी पॉलिसी असं म्हटलं जातं. एल म्हणजे लिबरलायझेशन, पी म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन, जी म्हणजे ग्लोबलायझेशन. ओके, सो डॉक्टर मनमोहन सिंह साइंड एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, जो दुनिया में व्यापार चलता है. ओके, ओके गाइज. So government signed, Manmohan Singh signed agreement with WTO, World Trade Organization and launched the policy of privatization, liberalization, globalization. ओके, तो अभी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको हम देखेंगे. तो गाइज आपको पता चला कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम आया था इकोनॉमिक, उसको सुधारने के लिए हमने क्या क्या उपाय किए. वो उपाय जब काम आने लगे तो उसके बाद देश में क्या क्या होना शुरू हो गया, उसके जो रिजल्ट है वो कैसे कैसे आने शुरू हुए, ये चीजें हमने देखी. तो यू गॉट इट एवरीथिंग अबाउट इट. Okay, so anybody else, anybody who don't understand or want to ask anything? Vishal, Vaishnavi, Vedant, Ayush, Vineet. Okay, Ayush and Vishal, Vedant, and what about Vaishnavi? Okay, good. नाउ डब्ल्यूटीओ क्या है हम देखते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जागतिक व्यापार संगठन. In 1995, India became a member of World Trade Organization, that is WTO. जैसा WHO है ना अभी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो द ऑर्गेनाइजेशन हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. ये जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड में, उसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है. तो उसका उद्देश्य है टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज. मतलब क्या, कंट्रीज में ट्रेड फ्री होना चाहिए. अगर कोई कंट्री किसी कंट्री पे सामान बेचना चाहे तो वो फ्री में होना चाहिए. फ्री में मतलब ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए. ओके, टू पुट टू एन एंड टू ऑल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज. मतलब क्या, किसी देश में अगर आप बाहर से माल आ रहा है तो बहुत ज्यादा उस पर टैक्स लगेगा. ओके, लेकिन उसी कंट्री जब दूसरे देश में माल बेचती है, गुड्स बेचती है, सामान बेचती है, उसको कम लगेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी है. ओके, इससे क्या होगा, एक कंट्री का बहुत ज्यादा फायदा होगा, दूसरे कंट्री का बहुत ज्यादा नुकसान होगा. तो उस पॉलिसीज जो है, जो रेस्ट्रिक्शन है, जो लॉ है, उसको खत्म करना, टू एंड. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. Okay, laws, restrictions and rules and policies that are hurdles in the way of international free trade. अभी इंटरनेशनल फ्री ट्रेड होगा, उसमें जो हर्डल आ रहा है, उसके जो प्रॉब्लम आ रहा है, किसकी वजह से, अगर कोई देश किसी कंट्री को रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, रूल्स डिफरेंट है, पॉलिसीज गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज है, तो उस सबको खत्म करना, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रेड है वर्ल्ड में वो फ्री हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा. ओके, मतलब कोई एक कंट्री अगर किसी और कंट्री को बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगी तो क्या होगा, उसके प्रोडक्ट महंगे होंगे और उसके प्रोडक्ट कोई लेगा ही नहीं. ओके, तो उसको एक फ्री व्यापार कर नहीं सकते, फ्री ट्रेड कर नहीं सकते. ऑल्सो
what was another objective? And the objective was to regulate global trade with the help of formal multi-party mechanism. ओके और जो वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है उसको क्या करना, कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए क्या करना है, एक फॉर्मल मल्टी पार्टी मैकेनिज्म फॉर्म करना, मतलब सभी देश आकर एक प्रकार का मैकेनिज्म फॉर्म करना जिसकी वजह से ये जो हर्डल आ रहे हैं उसको खत्म किया जा सके और फ्री ट्रेड ग्लोबल में ग्लोब सके में हो सके. जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड दैट इज गैट existed at international level before the World Trade Organization come into being. मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO उससे पहले एक अलग इंस्टीट्यूशन था, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, उसका नाम था गैट. ओके तो इट रेगुलेटेड कॉमर्स, मतलब ये जो गैट थी वो क्या करती थी, कॉमर्स जो चल रहे, व्यापार जो चल रहे उसको रेगुलेट करती थी. इन इंडिया देयर वेयर अपोज्ड एक्सट्रीम व्यूज अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अभी इंडिया में क्या था, वो इंडिया का ये मतलब था कि इंडिया में जो लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उसमें बहुत ज्यादा वी कैन से एंगर था WTO को लेकर. मतलब वो कहते थे कि WTO हमें लेना नहीं चाहिए, उनकी मेंबरशिप हमने लेनी नहीं चाहिए, उनके लॉज हमने मानने नहीं चाहिए. अगर उनके लॉज हम मानेंगे तो क्या होगा, बाहर के लोग देश में आएंगे, उनका ही सामान बेचेंगे, अपने देश के जो सामान बनने वाले लोग हैं उनका सामान कोई लेगा नहीं, ऐसे ऐसे उनको लगता था. सो दैट्स व्हाई वर्ल्ड in India there was opposed and extreme views about World Trade Organization. Yet India decided to take its membership. उसके बाद भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने सोचा कि नहीं, हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेनी चाहिए क्योंकि उसके कुछ लॉज अच्छे हैं हमारे देश के लिए, हमारे एक्सपोर्ट के लिए. ओके द प्रोविजंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिगार्डिंग ग्रांट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज. तो WTO क्या करता है, इन सब जो सेक्टर है, ग्रांट देना, किसी को पैसे देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, इन सबको देखता है, नजर रखता है, रेगुलेट करता है. दिस सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन, हेल्थ rapidly commercialized since India became a member of World Trade Organization. Okay, as soon as India became the World Trade member of World Trade Organization, many sectors in India they commercialized, मतलब उसमें प्राइवेट प्लेयर आ गए. ओके तो वो सेक्टर कौन थे, इलेक्ट्रिसिटी थे, ओके वाटर ट्रांसपोर्टेशन था, एजुकेशन सिस्टम थी, प्राइवेट कॉलेजेस होने लगे. ओके इलेक्ट्रिसिटी भी हमें प्राइवेट प्लेयर से आने लगी देश में. So as per various reports of World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different areas like reduction in below poverty line. ओके दरिद्र रेषा आहे ना, जो दारिद्र्य रेषेखाली लोक, तर त्यांना कमी करण्यासाठी भारताने इम्प्रूवमेंट केलेली आहे. पॉप्युलेशन में इम्प्रूवमेंट की है, मतलब कम की है. डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब जो हमारे यहाँ भ्रूण हत्या होती है, गर्भ में मार दिया जाता है, वो कम हो गई. अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इसकी भी फैसिलिटी इंडिया में बढ़ गई. ये किसने बताया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट ने बताया. India signed the South Asian. Okay, guys. Hello, am I audible to everyone? हेलो. ओके तो थोड़ा सा पोर्शन रह गए, हम वो खत्म करेंगे. ओके तो आप बने रहिए हमारे साथ. ओके तो ये सब कुछ हमने देखा. उसके बाद देखिए क्या हुआ, इंडिया साइंड अ साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज सैप्टा इन शॉर्ट. साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार. ओके ये जो कंट्री है, ये सब कंट्री, चाइना. तो इन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया आपस में, along with the lines of वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो जो काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के लिए करती है, वही काम साप्टा जो है वो किस लिए करती है, साउथ एशियन कंट्रीज के लिए करती है. इंडिया रिमूव्ड द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेवरल कमोडिटीज, ओके फॉर सार्क कंट्रीज. सार्क कंट्रीज आपको पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ये 7 से 8 मेंबर है इसमें, 7 से 8 मेंबर. ओके उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है
तो क्या किया, इंडिया ने इंपोर्ट करने पर रेस्ट्रिक्शंस उठा दी। ओके, ये कंट्रीज के लिए मतलब अभी इस कंट्रीज के लिए कोई भी कहां से भी इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया ऑल्सो गिव डिस्काउंट ऑन इंपोर्ट ड्यूटीज। ओके, अगर देश में कोई चीज अगर हम इंपोर्ट करते तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होता था, बहुत ज्यादा ड्यूटी लगती थी, बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो टैक्स कम कर दिया। ओके, डिस्काउंट दे दिया। इंडिया ओपनड अप द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी जो इंश्योरेंस हम निकालते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी जो है ये गवर्नमेंट की कंपनी, लेकिन एलआईसी के बाद भी और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज अब आ गए हैं देश में। तो ये क्या हुआ, ये सब इंडिया ने उस वक्त खोल दिया, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उस सेक्टर में आ गई है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो हमने क्या दिया डिटेल में कि इंडिया की इकोनॉमी की जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ी, और आज का जो मॉडर्न इंडिया है वो कैसे था पहले, और उस वो आज ऐसा कैसे हो गया, ये हमने देखा। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी टू ग्लोबलाइजेशन। Okay, in the next chapter we are going to study India's progress in other fields. Okay, so guys, this was all about your fourth lesson. I think fourth is yes, fourth lesson, Indian economy. Okay, so here is the text exercise for you. I will post this exercise and you have to write it down, and you have to post on Google Classroom. Okay guys, so guys, do you understand everything for today's lecture? How was the today's class? Was it interesting, or was it boring? Was it informative, knowledgeable, or not? Hello. Okay, guys. So, guys, I will just post exercise over there, and your duty is to complete it. Okay. So check Google Classroom. Okay, Vishal. Good night, everybody. Now you can leave the class. Vineet, you can leave the class.